northwest corner method, that is known as NWCM, and the second one was the least cost method. And in previous class also, one student raised about the Vogel's approximation method, how we will proceed towards Vogel approximation method. And one student also asked about how to solve unbalanced transportation problem. Because in the initial class also, I talked of you regarding, there are two kind of transportation problem. One is the balanced, another one is the unbalanced transportation problem. And at the end of the session, we will also look some of the multiple choice question. Reason being, you will having your internal assessment from 27th of this month. So we'll start with the Vogel approximation method. The Vogel approximation method, that is popularly known as also VAM, and which is also known as unit penalty method, जो भी बाद में पता चलेगा कि why it is known as unit penalty method, is an iterative procedure. It means it is a repetitive procedure for computing a basic feasible solution of transportation problem. This method is preferred over the two methods discussed in the previous sections or in the previous classes, because the initial basic feasible solution obtained by this method is either optimal or very close to the optimal solution. Good evening, sir. Now, good evening, good evening. Good evening, sir. Good evening, good evening. So now we'll be discussing about various steps, or better say the various logarithm involved in solving the Vogel's approximation method problem. So step 1 is to find the cells having smallest and next to the smallest cost in each row. ये theory part पढ़ने में थोड़ा it might be looking tough, लेकिन when we will move towards solving it by certain examples, it will look quite easy. और इसके बेस्ड में talking about your exam section also, इसके बेस्ड में मतलब चूंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. I'll try my level best. लेकिन it will be more of a theory involved with the transportation problem also, and the theory involved with the plant location layout. जो मतलब जो पढ़ा है उसी बेसिस पे questions भी आएंगे. Anyways, so step 1 is to find the cells smallest and next to the smallest cost in each row and write the difference, which is also known as penalty, along the side of the table in row penalty. Now step 2 is to find the cells having smallest and next to smallest cost in each column, and we will be writing the difference along the side of the table in each column. Step 3 will be selecting the row or column with the maximum penalty. ये हमेशा याद रखिएगा, VAM में पेनाल्टी मतलब रो और जो कॉलम का जो मिनिमम कॉस्ट था उसको माइनस करने के बाद जो आया, और सारे रो में सारे कॉलम में लिख लिया साइड में, राइट हैंड साइड वो लिख लिया रो पे, बॉटम में लिख लिया कॉलम के, जो भी आगे पता चलेगा. तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, वैसे रो और या कॉलम को सेलेक्ट करेंगे जिसका मैक्सिमम पेनल्टी स्कोर हो, एंड वी विल फाइंड सेल दैट हैज लीस्ट कॉस्ट इन सेलेक्टेड रो और कॉलम. अलोकेट एज मच एज पॉसिबल इन दिस सेल. मतलब अगर अभी स्टेप 3 पढ़ के लग रहा होगा कि बस एक स्टेप आगे है लीस्ट कॉस्ट मेथड्स, बाकी का जो मेथड है ये जो है वो उसी से लेता है, लीस्ट कॉस्ट से ही इसने कुछ अक्वायर किया है. If there is a tie in the values of penalties, then we will be selecting the cell where maximum allocation we can allot. Then step 4, we will be adjusting the supply and demand and cross out. उसको पूरा entire row या column को पूरा strike out कर देंगे, and then we will get the satisfied row or column. Then step 5 में we will be repeating this step. वही वाला same method है, northwest corner का और least का. Will be repeating this step until all supply and demand values are 0. मतलब मेरा काम खत्म. अब इसको जो है हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा. सबसे पहले तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है इस इंटरनल असेसमेंट में तो हो सकता है न्यूमेरिकल बेस नहीं आ पाए, रीजन बीइंग कि उसमें कुछ ऑनलाइन एक्सेल में प्रॉब्लम हो, लेकिन टॉकिंग अबाउट योर मिड सेम और योर एंड सेम एग्जाम, तो उसमें न्यूमेरिकल कोई भी न्यूमेरिकल आता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, सबसे पहले ट्राई टू फाइंड वेदर इट इज द बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और द अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. अगर बैलेंस्ड है तो क्वेश्चन में ये भी रहेगा कि सॉल्व इट बाय any of the 3 methods like VAM, least cost method or northwest corner method. If it is unbalanced also, जो भी आज के सेशन में भी है कि unbalanced प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना हम आज सीखेंगे. तो इस एग्जांपल में सबसे पहले कुछ नहीं करना है,
इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, सप्लाई साइड को कितना आया टोटल और डिमांड साइड को कैलकुलेट करेंगे। तो इस केस में 9 7 16 प्लस 18 34 इज देयर और डिमांड इज आल्सो 34, मतलब 34 जो है, मतलब ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, उसके बाद ही हम आगे बढ़े। अब सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या था, ये दिख रहा है ना अभी, ठीक है। तो क्या था, डिमांड साइड में 19 30 50 10 7 इज देयर। तो रो पेनाल्टी में क्या करेंगे कि 9 जो सबसे इसमें लोएस्ट कौन सा है, जो देखिएगा इसमें लोएस्ट इज 10 एंड नेक्स्ट लोएस्ट इज 19। तो 19 में से 10 को माइनस किया, यहाँ पे 9 आया। ठीक उसी तरह से अगर हम कॉलम में गए, एक मिनट एनोटेशन ऑन कर दीजिए, डिमांड वाले रो वाले साइड में गए, इस वाले साइड में, तो हम लोग देख रहे हैं कि लोएस्ट इज 10 एंड नेक्स्ट लोएस्ट इज 19। 19 में से 10 को माइनस किया, इट बिकम्स 9। ठीक उसी तरह से अगर हम कॉलम में गए तो लोएस्ट इज 19 एंड नेक्स्ट लोएस्ट इज 40, मतलब 40 में से 19 को माइनस किया तो हियर इट इज 21, यहां दिख रहा होगा। सिमिलरली हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। अब क्या बताया था कि उस पेनाल्टी में जो हाईएस्ट पेनाल्टी हो, तो हाईएस्ट पेनाल्टी अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो हाईएस्ट पेनाल्टी इस केस में 9 10 12 9 21 22 10 और 10 है, मतलब हाईएस्ट पेनाल्टी इज दिस वन 22। तो हम इसमें इस वाले कॉलम में देखेंगे, इस वाले कॉलम में देखेंगे कि इसमें लीस्ट कौन सा है, लीस्ट 8 है और 8 में हम मैक्सिमम कितना एलोकेट कर सकते हैं। तो कॉलम साइड में देख रहे हैं कि 8 है और रो साइड में देख रहे हैं कि 18 है। तो पता चला कि हम 18 को तो एलोकेट कर नहीं सकते हैं, कोई रीजन भी, तो डिमांड से बहुत ज्यादा हो जाएगा और डिमांड और सप्लाई हमेशा मैच होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा कि हम 8 को एलोकेट कर देंगे, 8 को हमने एलोकेट कर दिया, ठीक है। ठीक उसी तरह से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे अनटिल अनलेस कि पूरा डिमांड और सप्लाई का साइड 0 हो जाए, क्योंकि उसके बाद फिर हमारा पेनल्टी जो है वो चेंज होते जाएगा और वो जो एंटायर कॉलम हट गया वो तो पूरा हट ही जाएगा। एंटायर अगर रो हट गया तो फिर मान लीजिए सप्लाई साइड फुलफिल हो गया, सप्लाई में अगर मान लीजिए 10 सप्लाई करना था और 10 सप्लाई को हम एलोकेट कर दिए, तो उस पूरे कॉलम को कट कर देंगे, उस पूरे कॉलम को स्ट्राइक आउट कर देंगे। इन अ सिमिलर वे अगर डिमांड साइड में कोई भी रो का अगर खत्म, मतलब उसका डिमांड साइड जो है फुलफिल हो जा रहा है, एलोकेट हो जा रहा है, तो उस पूरे कॉलम को हम लोग स्ट्राइक आउट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप, मतलब वी विल मूव फर्दर, क्योंकि शुरू में ही बताया था कि इट इज अ रिपीटेटिव प्रोसीजर। अब देखिए यहाँ पे इस वाले स्लाइड में देख रहे हो कि सप्लाई साइड 0 है, डिमांड में 2 0 है, मतलब अभी भी जो है पूरा 0 नहीं हुआ है। तो हम लोग एक स्टेप और बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं, पिछले वाले स्टेप में देखा था कि 1 2 3 कॉलम, 3 सेल अभी भी बचा है जहाँ पे 0 नहीं हुआ है। फिर जब आगे बढ़े तो पता चला कि अभी भी 2 सेल बचा है। उसके बाद इस वाले में पूरा हमारा जो है वो ओवर हो गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी कैलकुलेटिंग द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जहां जहां एलोकेट किया था सिंपली उसको मल्टीप्लाई करके और उसका सम करके, then we will get the result which comes out to be 779. It can be in dollar or in rupees, वो दिया रहेगा एग्जाम, ठीक है। अब जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का जो मेथड था और जो लीस्ट कॉस्ट का था, उसमें क्या था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल शुड बी नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम माइनस 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं, जो पीछे अगर कीजिएगा तो पूरा 6 कॉलम जो है वो एलोकेट हुआ है, पूरा 6 कॉलम एक एलोकेट हुआ, एक ये एलोकेट हुआ, ये हुआ 3 4 5 और 6। जबकि हमारा टोटल रो कितना था, 3 रो थे, 4 कॉलम थे, मतलब आना कितना चाहिए था 3 + 4 - 1 दैट बिकम्स 6। और देख रहे हैं कि यहाँ पूरा 6 ही है, ठीक है। तो इस केस में बोल सकते हैं क्या, ये जो है प्रॉब्लम ये फीजिबल सॉल्यूशन दे रहा है।
अब एक और एग्जांपल से इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, चूंकि उसमें 4 कॉलम थे, 3 रो थे, इसमें एकदम बैलेंस्ड है, एकदम पूरी मतलब बैलेंस तो वो भी था, रिदमिक सप्लाई डिमांड इक्वल था। अब इस केस में देख रहे हैं 3 रो और 3 कॉलम है। तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट। तो देख रहे हैं हम लोग कि डिमांड साइड इज 600 एंड सप्लाई साइड इज आल्सो 600, मतलब बैलेंस्ड है। दूसरी चीज क्या है कि सबसे पहले ये मान के ही चलना है कि 3 कॉलम है, 3 रो है, तो उसमें से 1 माइनस करेंगे, मतलब टोटल 5 अलोकेटेड सेल होना चाहिए। 5 से ना एक कम ना एक ज्यादा। अगर कहीं ज्यादा आ रहा है इसका मतलब हमारे ऑब्जर्वेशन में कुछ गलती हुई है, या अगर कम आ रहा है मतलब हमारे ऑब्जर्वेशन में कुछ प्रॉब्लम हुई है। फिर ठीक उसी तरह से इसका सोल्यूशन करते हैं। एक एक मैं बता देता हूँ। जैसे इस वाले रो को अगर लिया तो इसमें मिनिमम इज 6 एंड नेक्स्ट मिनिमम इज 8। 8 माइनस 6 बिकम्स 2, जो यहाँ पे हमने पेनाल्टी कॉस्ट इसको मान लिया। ठीक है। ठीक उसी तरह से इस कॉलम में अगर लेंगे तो मिनिमम इज 7 एंड नेक्स्ट मिनिमम इज 11, मतलब यहाँ पे 4। ठीक है। फिर इस कॉलम में लेंगे तो मिनिमम इज 4 एंड नेक्स्ट मिनिमम इज 5, मतलब 1। ठीक है। ठीक उसी तरह से फिर हम कॉलम में आएंगे। अब इस कॉलम में क्या हुआ, ये हम रो की बात कर रहे थे, अब कॉलम में अगर आएंगे तो मिनिमम इज 4 एंड नेक्स्ट मिनिमम इज 6, मतलब 2, यहाँ पे 2 है अभी। ठीक उसी तरह से इस वाले कॉलम में अगर आएंगे तो मिनिमम इज 5 एंड नेक्स्ट मिनिमम इज 8, मतलब 8 माइनस 5 बिकम्स 3। 3 यहाँ पे है। ठीक उसी तरह से इसमें मिनिमम इज 10 एंड नेक्स्ट मिनिमम इज 11। 11 माइनस 10 बिकम्स 1। तो ये पेनाल्टी हमने अलॉट कर दिया। उसके बाद फिर हम जो पिछला एग्जांपल था उसी बेसिस पे फिर हम आगे बढ़ते जाएं। जैसे कि देख रहे होंगे आप यहाँ पे कि इसमें हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट 1 2 3 4 में हाईएस्ट है 4। मतलब हम क्या करेंगे कि इस वाले रो पे फोकस करेंगे सबसे पहले। अब इस वाले रो में देख रहे हैं कि मिनिमम यूनिट कॉस्ट जो है वो 7 है, और मैक्सिमम जो हम एलोकेट कर सकते हैं दैट विल बी चूजन बिटवीन 175 एंड 200। तो कभी भी अगर एलोकेट करना है तो जो मिनिमम होगा उसी को करेंगे एलोकेट। रीजन में कि अगर 200 को करेंगे तो सप्लाई से ज्यादा है, जबकि हम बात कर रहे हैं बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की। या अगर अनबैलेंस्ड को भी सॉल्व करेंगे तो उसको बैलेंस्ड करते हैं सबसे पहले, उसके बाद ही हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक उसी तरह से सेम काम करेंगे, प्रोसेस को आगे तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक हमारा सप्लाई और डिमांड का जो कॉलम है वो 0 नहीं हो जाता है। इसमें देखिए सबसे पहले तो ये चेक कर लेंगे यहाँ पे कि जो अलोकेटेड सेल था उसका नंबर कितना होना चाहिए था, एज टॉक टू यू अर्लियर कि दैट शुड बी 3 + 3 - 1 दैट इज 5। अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, मतलब ये जो है ये हमें feasible solution देगा। तो by calculating from initial Vogel's approximation method, total cost will be $5125। अब लास्ट क्लास में भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये तो बैलेंस साइड हो गया, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी है तो उसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप विल बी टू चेक वेदर सप्लाई एंड डिमांड आर इक्वल। इफ नॉट, इट मीन्स 2 केस हो सकता है, इधर सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड और डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो उस केस में क्या करेंगे हम, इफ इट इज अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, our first step, our first intuition should be to make it balance। अब अगर कोई चीज अगर अनबैलेंस्ड है और उसको अचानक से बैलेंस करना है तो हमें एक फजी वेरिएबल, एक डमी वेरिएबल ऐड करना होता है। तो these unbalanced problems can be easily solved by introducing dummy sources और dummy destination। मतलब या तो डिमांड साइड में हम रो का एक रो बढ़ा दें या फिर हम कॉलम बढ़ा दें, लेकिन उसको 0 0 0 0 रखना है। पर यूनिट कॉस्ट को 0 रखना है, उसके बाद सप्लाई वाले साइड में बढ़ा देंगे। इफ द टोटल सप्लाई इज ग्रेटर देन द टोटल डिमांड, अ डमी वेरिएबल, अ डमी कॉलम विद डिमांड इक्वल टू सप्लाई सरप्लस इज एडेड। वो भी अभी एग्जांपल से देख लेंगे। इफ द टोटल डिमांड इज ग्रेटर देन, मतलब इसी का वाइस वर्सा स्टेटमेंट था इट वाज, if the total demand is greater than the total supply, a dummy source with supply equal to the demand surplus is added to it. The unit transportation cost for the dummy column and dummy row are assigned 0 values because no shipment is actually made in case of dummy source and dummy destination.
एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है इसमें कि सबसे पहले तो ये करना है कि विल बी चेकिंग, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ये नहीं भी रह सकते हैं कि चेक वेदर द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम शोन इन द टेबल इज अ बैलेंस्ड वन। सिर्फ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, इसको हटा के, इस पूरे सेगमेंट को हटा के भी क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन क्रॉस मार्क करके भी, कि सप्लाई साइड है और डिमांड साइड है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सप्लाई साइड इज 700 और डिमांड साइड इज 600। मतलब हमें क्या करना है, डिमांड में एक यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, डिमांड में ऐसा करना पड़ेगा कि डिमांड मैचेज विद द सप्लाई। तो फॉर अ गिवन प्रॉब्लम द टोटल supply is not equaling to the total demand, so the given problem एकदम basic instinct है कि the given problem is an unbalanced transportation problem. So what we will do to convert the unbalanced transportation problem into a balanced problem, we will be adding a dummy column, thus a dummy destination is added to the table with a demand of 100 units. यहाँ पे हमने dummy add कर दिया, देख रहे हैं 0 0 0 और बस यहाँ पे 100 लिख दिया, so that to make it a balanced transportation problem. अब क्या है कि ये प्रॉब्लम जो है इस स्लाइड में दिख रहा होगा कि नाउ द अनबैलेंस्ड, अभी तक हमने क्या किया, सॉल्व नहीं किया है, अभी तक हमने बस क्या किया है कि अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हमने बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया। ठीक उसी तरह से फॉर एग्जांपल कभी कभी ये हो सकता है कि हमारा जो सप्लाई है, हमारा जो डिमांड है वो सप्लाई से ज्यादा हो। जैसे यहाँ देख रहे हो कि डिमांड इज 1000 एंड सप्लाई इज 800। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में कॉलम ऐड किया था, इसमें हम लोग रो को ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने एक नया रो ही बना दिया 0 0 0 0 0 0 और हमने सप्लाई साइड में यहाँ पे 200 कर दिया, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक इट अ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, अब चूंकि अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, उसके बाद द प्रोसेस रिमेन्स द सेम, इधर यू सॉल्व इट बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और बाय लीस्ट कॉस्ट और बाय वीए वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो एक आप लोग के लिए एग्जांपल लिया था कि फाइंड सॉल्यूशन यूजिंग लीस्ट कॉस्ट मेथड। ठीक है, अब लीस्ट कॉस्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले तो ये देखेंगे कि here total demand is equal to 250, which is less than the total supply, which is 235. So we add a dummy demand constant with 0 unit cost and with allocation 20. हमने इसको बैलेंस बना दिया। अभी तक क्या था, ये अनबैलेंस था, हमने इसको बैलेंस बना दिया। जो है द प्रोसेस रिमेन्स द सेम। अब लिस्ट कॉस्ट में हम लोग क्या करते थे, जो सबसे कम वाला है, तो ऐसे भी पता चल रहा है कि सबसे कम तो 0 ही है, तो 0 में हम लोग क्या बोल रहे थे कि 0 तो यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है। लेकिन लिस्ट कॉस्ट को सॉल्व करने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे तो पता था कि जो सबसे कम वाला है सबसे पहले उसको हम एलोकेट कर देंगे। सबसे कम कौन सा है, 76 वाला है। तो 76 में से, चूंकि नीचे तो 0 ही था, 20 था, तो 76 में से मैक्सिमम जो हम लोग एलोकेट कर सकते थे वो 20 कर सकते थे। 76 माइनस 20 बिकम्स 56। ठीक है, ठीक उसी तरह से लिस्ट कॉस्ट भी क्या था, प्रोसेस को तब तक बढ़ाते जाएंगे। अब इस केस में टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन कितना होना चाहिए, तो चूंकि 4 है डमी वेरिएबल को लेके, प्लस 3 माइनस 1 दैट बिकम्स 6। मतलब टोटल एलोकेटेड सेल जो है वो 6 होना चाहिए। जो भी आगे पता चलेगा कि 6 है कि नहीं है। अगर 6 नहीं है इसका मतलब हमने कहीं गलती करी होगी। हम लोग तब तक बढ़ते जाएंगे जब तक सप्लाई और डिमांड, मतलब ओरिजिन और डेस्टिनेशन साइड जो है वो 0 ना हो जाए। साइड को अच्छे से देखिएगा। ये जो है हमारा फाइनली जो टेबल 6 है, इट कम्स आउट टू बी द इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो बताए थे कि चेक करेंगे कि वेदर द एलोकेटेड सेल इज ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5 और नॉट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल कितना आना चाहिए था, 6, क्योंकि 4 कॉलम है, 3 रो है, 4 + 3 - 1 हमारा जो है वो 6 आना चाहिए। देख रहे हैं यहाँ पे 6 है, मतलब ये जो है इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन दे दिया। फिर उसके बाद सिंपल ये करेंगे, 56 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे,
देन 16 को 8 से करेंगे, 24 को यहाँ पे देखिएगा, तो इट कम्स आउट टू बी 2968, और ये भी देख रहे हैं कि ये 6 आ रहा है, मतलब 4 + 3 - 1 बिकम्स 6। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो अभी बाद में है। कहने का मतलब ये है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो, कोई भी हो, वेदर इट इज बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तो आप लोग के सिलेबस का जो पार्ट है, इट वाज जस्ट टू फाइंड द इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन। हालांकि एक स्टेप और आगे भी है जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं है, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिमम सोल्यूशन निकाल। बिकॉज इनिशियल फीजिबल सोल्यूशन और ऑप्टिमम सोल्यूशन में, तो ऑप्टिमम सोल्यूशन के लिए एक मेथड है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जो विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, तो उसको टच नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि whether it is a balanced transportation problem or an unbalanced transportation problem, we can get the initial feasible solution by any of the three methods, like least cost method, northwest corner method and Vogel's approximation method. And अगर ध्यान से देखिएगा तो सोचिएगा, तो लीस्ट कॉस्ट मेथड और वोगल्स अप्रोक्सीमेशन का जो प्रोसीजर है, दैट इज मोर और लेस सेम, और तीनों में जो कॉमन जो चीजें हैं वो है कि मैक्सिमम एलोकेटेड सेल जो है वो नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1 होना चाहिए किसी भी केस में, चाहे वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो। क्योंकि अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को भी हम लोग बैलेंस करके ही सॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम at the first hand it might seem it is unbalanced, but in order to solve it further we are going for it to convert into the balanced transportation problem, either by adding a dummy row or either by adding a dummy column. तो ये it was all about transportation problem। अभी आगे में मतलब नेक्स्ट क्लास में, तो मंडे को तो क्लास नहीं होगी क्योंकि नेक्स्ट वीक एग्जाम है, तो नेक्स्ट वीक कभी भी क्लास होती है तो विल बी गोइंग थ्रू डिजाइन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, जो विच इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस। नाउ एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा? हाँ, वही मैं आ रहा हूँ उस पे। सो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं पूरा। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या है कि अमंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि इसका जो बेसिक फंडा था जो क्यूए में पढ़ा होगा क्वांटिटेटिव मेथड्स में, एक बार मैं पढ़ाया भी था, बहुत कम बच्चे आए थे उस दिन। तो अमंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज one of the very popular methods. So as transportation of goods from one place to another becomes increasingly very important in nowadays global economies. So just to brief this session, ki knowledge of the transportation problem is fundamental to be efficient and economical operation of the company or any operations. And this model, transportation model, that is TP, also plays a very important role in reducing cost and improving service. तो अभी हिना जी का क्वेश्चन था कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो मुझे पता था कि जैसे एग्जाम का नोटिस आएगा तो यू मस्ट बी क्यूरियस अबाउट नोइंग कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन जो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में भी दिए होंगे एग्जाम, तो मिड सेम और एंड सेम, तो अभी तक क्या था कि आपका जो एग्जाम होता था दैट वाज ऑन विद अ पेन एंड पेपर। अभी क्या है, वो OMR शीट में भरना होता था, अभी ऑनलाइन एग्जाम होगा, बट the basics remains the same, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम हो या फिर ऑफलाइन एग्जाम हो, but the basic remains the same। जैसे talking about my subject operations management, जैसे अगर आपको स्क्रीन दिख रहा होगा तो मान लीजिए क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक टॉकिंग अबाउट दिस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ओनली, कि अभी जो सिलेबस जस्ट खत्म हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वाला टॉपिक खत्म हुआ है, तो द क्वेश्चन कैन बी कि व्हेन द टोटल सप्लाई इज नॉट इक्वल टू द टोटल डिमांड इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? Options are balanced transportation problem, unbalanced transportation problem, degenerate, or none of these. Abhi just Unbalanced. No. When total supply is not equal to total demand in a transportation problem, then it is called balanced or unbalanced. Unbalanced. अच्छा, you have talked unbalanced. Actually हमें balance सुनाई दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मतलब इस टाइप में क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन इज द सोल्यूशन टू ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विथ एम रोज। अभी जस्ट उसके बारे में 3-4 बार बात किया हूँ। द सोल्यूशन टू ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विथ एम रोज एंड एन कॉलम्स इज फिजिबल, क्योंकि मैंने बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है, पहले अभी जो लीस्ट कॉस्ट मेथड या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड या वीएम मेथड है, वो हमें इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन देता है।
तो with m rows and n columns is feasible if number of positive allocations are choice 1 is m plus n, b is m into n, c is m plus n minus 1, d is m plus n plus 1. Priyanka, Sir, m plus n minus 1. good. तो इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जैसे एक क्वेश्चन है कि इन अप्लाइंग summation method to a transportation problem, row and column penalties are determined by finding the largest unit cost in each row or column, finding the smallest unit cost in each row or column, finding the sum of the unit cost in each row or column. Fourth is finding the difference between two lowest units cost in each row and column, and finally E option is finding the difference between the two highest unit cost in each row and column. अभी जस्ट बताया था उसको, मैंने When, क्लास अभी जस्ट मैं ज्वाइन की हूँ सर, तो मैंने सुना ही नहीं। अच्छा, तो मैं बता देता हूँ। मैंने बताया था कि उसका जब हम जब वो करते हैं पेनाल्टी कॉस्ट करते हैं, तो क्या करते हैं कि सबसे पहले किसी भी रो या कॉलम, मतलब सारे रो में जाना है, सारे कॉलम में जाना है, और उसका जो लीस्ट कॉस्ट है और उसके बाद का जो लीस्ट कॉस्ट है, मतलब मिनिमम कॉस्ट एंड नेक्स्ट टू मिनिमम कॉस्ट को माइनस करके हम लोग पेनाल्टी कॉस्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे दिया भी हुआ है ऑप्शन 4 पे, को ध्यान से पढ़िएगा कि फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू लोएस्ट यूनिट्स कॉस्ट इन ईच रो एंड कॉलम। तो इसको हम लोग पेनाल्टी कॉस्ट बोलते हैं इन वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। एक उसी तरह से क्वेश्चन कैन बी द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, व्हिच इज NWC रूल, requires that we start allocating units to shipping routes in the upper left hand corner of the table. very good. कौन बोला? प्रियंका सर, प्रियंका। अच्छा, सेम। और बाकी लोग? अच्छा, एनीवेज, तो जैसे ये तो हुआ, मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बात हुई। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस कि व्हाट आर द input resources to any transformational process. Option can be information, materials and customers, people and machines. Then option C can be process, people and parts, and option D is क्वेश्चन इज कि जो फर्स्ट क्लास को में जाइएगा, फर्स्ट क्लास में जो पढ़ाया था कि व्हाट आर द इनपुट रिसोर्सेज टू एनी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, बिकॉज ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज इनिशियली इट वाज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बट nowadays as the time passes by it is being also known as the transformation process, कि सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है, it is nothing but the transformation process. तो options are, this question is, I'm repeating the question once again, what are the input resources to any transformational process? Option A, information, materials and customers. Option B, people and machines. Option C, processes, people and parts. And option D, staff, facilities, materials and information. मैंने बताया भी था इसको कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट टेक्स इनपुट एज स्टाफ, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, मतलब जितना भी जो इकोनॉमिक्स में पढ़े थे, एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट आल्सो। मतलब ऑप्शन 4 पे अगर मतलब इसमें तो नहीं है कि स्टाफ, फैसिलिटीज, मटेरियल्स एंड इंफॉर्मेशन। ठीक उसी तरह से जो सेकंड सेशन जो लिया था प्लांट लोकेशन एंड लेआउट पे, तो उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अ गुड लेआउट रिक्वायर्स डिटरमाइनिंग व्हाट, अ गुड लेआउट रिक्वायर्स डिटरमाइनिंग व्हाट। ऑप्शन ए, capacity and space requirements. Option B, material handling requirements. Option C, environment and aesthetics. Option D, flows of information. And option E, all of the above. तो ऐसे क्वेश्चन से भी लग रहा है कि जो बताया भी था कि अ गुड प्लांट लेआउट विल बी रिक्वायरिंग, एक तो प्लांट लोकेशन की बात की थी कि प्लांट लोकेशन हम क्यों रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, जिसका एक बहुत छोटा सा पार्ट था ट्रांसपोर्टेशन मेथड। मतलब ये भी कंसीडर किया जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन मेथड, ट्रांसपोर्टेशन हमारा जितना मिनिमम कर सके उतना हम लोकेशन को अच्छा बना सके, मतलब वो लोकेशन हमारे लिए ज्यादा फिजिबल होगा, दैट लोकेशन विल बी मोर सूटेड फॉर मी। तो ठीक उसी तरह से अगर लेआउट की बात करें तो गुड, ये आप एक तरह से रिवीजन भी है, जो कि मतलब पढ़ाई तो सेकंड सेशन में हो ही गई थी। अ गुड लेआउट आल्सो रिक्वायर्स कैपेसिटी एंड स्पेस रिक्वायरमेंट भी चाहिए। अगर ऐसे भी सोचिएगा तो अगर हम अपने यूनिवर्सिटी के बारे में सोचें अगर, या अपने सिटी ऑफिस के बारे में भी अगर सोचें,
तो अगर उसका लेआउट की बात करें तो अच्छा कैपेसिटी होना चाहिए, अच्छी स्पेस रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मटेरियल हैंडलिंग रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इन्वायरमेंट और एस्थेटिक्स भी अच्छा होना चाहिए और इन्फॉर्मेशन फ्लो भी अच्छा होना चाहिए। मतलब एक जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, मोड ऑफ कम्यूशन है, वो भी अच्छा होना चाहिए। तो गुड लेआउट जो है वो इन चारों चीज में सबका रिक्वायरमेंट उसमें होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वीक सेशन जो बात करेंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिजाइन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसमें विल बी डिस्कसिंग अबाउट नेचर ऑफ डिमांड, then various automation process, then flexibility, और उसके बाद जो क्वालिटी चेकिंग की बात होती है कि what should be the minimum quality level and what should be the degree of customer contact, कि कितना उसमें वो करें। तो इसके अलावा अगर मान लीजिए कि चूंकि देखिए मैं बता देता हूँ पहले ही कि इसमें एज इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इसमें न्यूमेरिकल के ऑप्शंस जो है बहुत कम होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये एग्जाम का टाइमिंग आप लोग को मिल ही गया होगा, ड्यूरेशन इज ऑफ 10 मिनट्स। सो इन 10 मिनट्स आई डोंट थिंक कि न्यूमेरिकल विल बी अ फिजिबल सॉल्यूशन फॉर यू, क्योंकि अभी मैं वही बात कर रहा था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कि इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। तो मतलब क्वेश्चन सेटर को भी माइंड में रहता है कि वैसा क्वेश्चन सेट करें जो सॉल्व करने में भी फिजिबल हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट। करोगे? और कौन कौन है, एक मिनट। हाँ सर क्वेश्चन आप सेट करोगे? अभी तो नहीं पता, लेकिन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ओके सर। हाँ अच्छा प्रियंका ने हाथ रेज किया था। अच्छा क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? सर कितने क्वेश्चन रहेंगे सर? 10 क्वेश्चंस रहेंगे, शायद विशाल सर ने भेजा होगा। 10 questions will be there and time limit will be also 10 minutes। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देना या सॉल्व करना दोनों फिजिबल नहीं होगा। देना तो चलो मैं कुछ भी दे सकता हूँ, बट सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम विल बी अ टफर जॉब। तो जो भी सेशन है, अगर मान लीजिए स्वाध्याय पे भी वीडियो इज ऑल्सो अपलोडेड, तो इफ यू आर नॉट एबल टू एसेस दैट, so kindly ask me on my personal WhatsApp. I can share the whole PPT in your email ID also. हालांकि स्वाध्याय पे everything is there, but still due to some technical error, if you are not able to assess that, तो विशाल सर ने मैसेज भी किया था कि kindly get in touch with प्रोफेसर अमर सर, और मैम भी अभी शायद कुछ एग्जाम के बारे में बताएंगी, कब से कब तक है, मतलब कितना मिनिमम मार्क्स होना चाहिए या कितना मैक्सिमम तो क्या 10 होना चाहिए, मिनिमम कितना पासिंग मार्क्स है। ये मैम से कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इट फ्रॉम मैम। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड ईद मुबारक भी सबको। कब है ईद, है क्या वैसे? संडे लेकिन छुट्टियां ठीक है ना? 25th को है। अच्छा 25th, हाँ तो 25th इज मंडे आई सपोज। यस सर। अच्छा विश यू ऑल द बेस्ट। रुकना मैम। Yes, sir. I'm repeating one. Hello student को बोल रहे थे कि if you are unable to assess the स्वाध्याय material,